ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. લોકડાઉનના કારણે સુરતના રહીશોના જીવનમાં કેટલાક ફેરફાર આવ્યા છે. લોકડાઉનના દિવસો સુરતના લોકો માટે કેવા રહ્યા તેના વિશે ઉમરા ગામના સ્થાનિકોએ શું કરી વાત, શું માનવું છે સુરતના ઉમરા ગામના લોકોનું અને તેમના જીવનમાં શું ફેરફાર થયા, આવું જોઈએ. લોકડાઉનની અંદર લોકો કઈ રીતે રહ્યા, કયા પ્રકારની સમસ્યાઓ આવી અને સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવામાં તેઓ કઈ રીતે સફળ થયા અને હવે આવનારા દિવસોમાં તેઓ કઈ રીતે આગળ વધશે. સુરત શહેરના ઉમરા ગામના વતની છે, ઉમરા ગામના રહેવાસીઓ છે, આ પ્રમાણે ઉપસ્થિત થયા છે તેઓ અને કઈ રીતે હવે તેઓ આગળ વધવા માટે તૈયાર છે તેના વિશે વાતચીત કરીશું. અલગ અલગ વ્યવસાય સાથે વિદ્યાર્થીઓ છે, અલગ અલગ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો આપણી સાથે મોજૂદ છે. શરૂઆત કરીએ પાર્લે પોઈન્ટ વિસ્તારમાં રહેતા ઉમરા ગામના રહેવાસીઓ પાસેથી. તમે જણાવો, લોકડાઉન છે એ લોકડાઉનની અંદર કયા પ્રકારે તમારા દિવસો રહ્યા અને કઈ રીતે એની સમસ્યાનો નિદાન શોધવામાં તમે સફળ રહ્યા? અમે સેકન્ડ યર કોલેજનું સ્ટુડન્ટ છું અને અમારી કોલેજ ગુજરાત સ્ટેટની બહાર હતી. તો લોકડાઉનના લીધે કોલેજ બંધ થઈ ગઈ એટલે બધા સ્ટુડન્ટ્સને પાછું આવવું પડ્યું અને હવે અમારા ભણવાનું જે છે એમને બંધ થઈ ગયું છે. તો અમારા ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલે છે. તો એ બધી બહુ પ્રોબ્લેમ થઈ છે. થોડા સ્ટુડન્ટ્સથી ભણાતું નથી અને અમારે બીજા બધા બી ઘણા પ્રોબ્લેમ છે. જે 2-3 મહિના હવે અમારું બધું એડમિશનનું બધું ડીલે થઈ જશે. અને જે બિઝનેસના પપ્પાનું બિઝનેસનું અમારું ડાયમંડનું બિઝનેસ છે એ બી બધું બંધ થઈ ગયું છે. કેમ કે એક્સપોર્ટ ને ઇમ્પોર્ટ બધું બંધ છે. તો ઘણા પ્રોબ્લેમ ચાલે છે હવે. અને હવે ફ્યુચર માટે જ અમે ઘરે રહીશું, જેટલું થાય એટલું ટ્રાય કરશું ઓછું કરવાનું, આપણે પોતે જેટલું કરી શકીએ. બિલકુલ. કોરોનાએ તમને શું શીખવાડ્યું, કઈ રીતે હવે કોરોનાની સાથે જીવવું છે, આગળ વધવું છે? આવું પહેલી વાર જ શીખ્યું છે કે આખો દિવસ ઘરે રહેવાનું છે, 24 કલાક કંઈ કરવાનું નથી. તો શીખડાયું તો એ જ છે કે કંઈ બી સિચ્યુએશન આવે લાઈફમાં, વી હેવ ટુ ડીલ વિથ ઇટ. આપણે એટલે ફેમિલીવાળા જોડે ઘરે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો, કંઈ બી પ્રોબ્લેમ્સ આવે એનાથી ડીલ કરો ને હવે બસ જેવું થશે એવી રીતે અમે, જેવું ગવર્મેન્ટ કહેશે એવું અમે કરશું. બિલકુલ, ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે આગળ વધશે. ક્યારે વિચાર્યું હતું કે આવા દિવસો આવશે? કઈ રીતે આગળ વધવાનો હવે પછીનો નિર્ણય? હવે આગળ વધતા આપણે બધાએ સૌથી વધારે તો ઇમ્પોર્ટન્સ આપણા સેનિટેશન અને હાઇજીન પર આપવું પડશે. હવે લોકો બહાર જ્યારે જતા હોય ત્યારે બધાએ માસ્ક પહેરવા જોઈએ. લોકો જ્યારે રમતા હોય ત્યારે ઇવન ગ્લવ્સ પહેરવા જોઈએ. લોકો વ્યવસાય પર જતા હોય પોતપોતાના તો એક સેનિટાઈઝર કેરી કરવું જોઈએ. અને ગવર્મેન્ટને આપણું જે ICMR છે, ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, એ લોકોએ જે भी બધા गाइडलाइंस આપ્યા છે એ બધાનું પાલન કરવું જોઈએ. किस प्रकार से मुश्किलें आई है, किस तरह से बाहर आने की कोशिश की आपने? मेरा थर्ड ईयर था और मेरा 1 पेपर ही हुआ था और हमें उसके बाद हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए, बंद हो गए थे, तो हमें वापस आना पड़ा. अब हमें पता नहीं हमारे एग्जाम्स कब होंगे, हम अपने हायर एजुकेशन वापस कब परस्यू कर पाएंगे. और इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे हार जाएं और पढ़ना छोड़ दें. आई थिंक डिस्टेंस एजुकेशन विल बी द न्यू ट्रेंड. तो ऑनलाइन क्लासेस आएंगी एंड हमें इसी में देखना चाहिए कि हम कैसे खुद को ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं और इस सिचुएशन के साथ कैसे डील कर सकते हैं. કોરોનાની સાથે હવે તમામ લોકોને જીવવાનું છે. શું પ્લાનિંગ છે તમારો હવે? શું अब अभी जैसे लॉकडाउन फेज 4 चल रहा है तो जैसे गवर्नमेंट ने काफ़ी रेगुलेशंस जारी किए जिससे बिजनेसेस भी थोड़े बहुत स्टार्ट हो चुके हैं और हमें अब पता है कि आगे इसके साथ ही जीना है, चाहे वैक्सीन जब तक आए या ना आए, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो अब हमको अपने आप को ध्यान रखने के हम प्रॉपरली सैनिटाइज करके जाए और जहाँ भी बाहर जाए मास्क पहन के जाए और अपने सारे डॉक्टर गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस हैं उनको पर्टिकुलरली फॉलो करें, तभी हम इससे लड़ पाएंगे. वरना ये जो भी हमारी कोशिशें हैं सब बेकार हो जाएगी अगर कोई भी इसको फॉलो नहीं करेगा. और जहाँ तक बिजनेस की बात है तो मैं अपने बिजनेस बोलूँ तो मेरे ट्रांसपोर्ट का काम है. तो अभी लॉकडाउन जैसे खुल रहे हैं तो ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा छूट मिल गई है, वो घर जा रहे हैं अपने. तो हमारे बिजनेस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि ड्राइवर ही नहीं मिल रहे काम करने के लिए. तो ये बहुत बड़ी समस्या है. लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, जैसे जैसे लोग आगे आएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स कम होती जाएगी. તમે કયા પ્રકારના આ દિવસો પસાર કર્યા? શું ઉપાય વિચાર્યો? मैं हाउसवाइफ हूँ और अचानक से ये कोरोना आया तो लॉकडाउन हुआ. इसके कारण सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे घर वाले को ही हुई क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उनको भी घर में ही आना था.
बिजनेस करने हमारे हस्बैंड जो बाहर रहते तो वो भी घर में ही रहते थे। सबसे बड़ी मुसीबत आई हमारे ऊपर मेड की, और घर में बच्चे बुजुर्ग सब रहते हैं, उनको संभालना, बच्चों को संभालना कि मतलब मम्मी बाहर जाना है, उनको समझाना। और सरकार ने सबसे अच्छा काम ये किया, उस समय रामायण चालू कर दिया। वो रामायण के कारण हमारे बुजुर्ग घर में बैठे और बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार मिला इस रामायण के कारण। बच्चों के अंदर ऐसा लगा कि हाँ कुछ था पहले हमारे देश में, राम जी थे, सीता जी थी, बहुत अच्छा धार्मिक संस्कार भी बच्चों को मिला हमारे। और मेड और सर्वेंट वो सब हम बच्चे मिल के ही घर में सब काम कैसे करना है, हम बहुत अच्छी से किए काम। आप बताइए किस तरह से अभी आगे बढ़ने का प्लानिंग है? कोरोना तो है ही, ये जो अचानक से हमारे देश में कोरोना का आया संकट, उसके लिए सबने देखा क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ, हमने सब सेफ्टी भी की, लेकिन अब इसके आगे हमें तो बढ़ना तो होगा ही। ये समय समय पर ये सब बीमारियां आती रहेंगी, जैसे हमारे स्वाइन फ्लू हुआ, ये जो वायरस आते हैं, लेकिन अब उसी तरह से ही कोरोना को भी हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। लॉकडाउन हो गए, 2 महीना रह गए, लेकिन ऐसी जिंदगी नहीं चल पाएगी। उसके लिए अब हमें वापस से अपने आप को लाना होगा आगे, तो वो सेफ्टी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सब कुछ अपने ग्लव्स और सैनिटाइजर और मास्क लेके और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। उसके लिए हमें सबको समझना होगा, और मोदी जी ने जिसे हमें किया है इस तरह लॉकडाउन, उसको समझना होगा कि ये हमारे भले के लिए किया है। तो आगे भी और जो लेबर क्लास है उनको भी समझाना होगा। आप जણાવો કઈ રીતે હવે આગળ વધશો કોરોનાને સાથે રાખી? कोरोना को साथ में रख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करके। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए खाली ये नहीं कि आप एक कोई पर्टिकुलर काढ़ा ले लो, दिस इज कंप्लीट लाइफस्टाइल। सबसे पहले आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रांग तो होना ही है। उसके लिए आपको अपना खाना, हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड, और जो हम लोग घर में देसी खाना बनता है, जंक फूड अवॉइड करके। और ये हमारे साथ रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने या साल भर में चला जाएगा। वी डोंट नो कि कब तक स्टे करेगा। तो हमें एक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जरूरत नहीं है बाहर मत जाओ। बच्चों को तो आई गेस जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल तो पेरेंट्स को भेजना ही नहीं चाहिए 6 महीने तक। और जो बड़े बच्चे हैं, हो सकता है जैसे आजकल ऑनलाइन स्टडीज हो रही है, आप वैसे पॉसिबल हो वो करो, और उसके साथ आप शॉपिंग जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, जितना अवॉइड कर सकते हो वो करो। मेरा सजेशन यही है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। તમે કયા વ્યવસાય સાથે સંકળાયા છો અને શું છે હવે આવનારા દિવસોમાં કઈ રીતની તૈયારીઓ? जैसे ही कि ये कोरोना आ चुका है, जैसे ही हमारा 4th फेज है लॉकडाउन का, तो हम जैसे ये 4 फेज में हमने इतना ध्यान दिया है अपनी सेफ्टी पे, अपने सैनिटाइजेशन पे, वैसे ही हम आगे अपनी सैनिटाइजेशन पे ध्यान देते रहेंगे। अपने प्रॉपर ग्लव्स पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे अभी गवर्नमेंट ने थोड़े बिजनेसेस में परमिशन ग्रांट की है, तो जो बिजनेस चालू हो गए वो गवर्नमेंट जो चालू बिजनेसेस भी अपनी दुकानें, ट्रक्स वगैरह जो भी है उन सबको सैनिटाइज करके अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में ही है, कोई दूसरा आके हमें नहीं बचाएगा। और भले कोई, अगर हमें ये नहीं करना चाहिए कि कोई दूसरा जा रहा है कि कोई दूसरा मास्क नहीं पहना उसने नहीं, बट हमें मास्क पहनना चाहिए। हमें दूसरों की तरह देख के उनकी गलती नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें मास्क पहन के रहना चाहिए। सबके हमें सरकार का साथ देना चाहिए। તકેદારી રાખો। વિદ્યાર્થી છે, સૌથી નાની વિદ્યાર્થીની, क्या सोचा है अभी? अभी हमारे स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होगी। जब हमारी गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो अगर हमारी स्कूल चालू भी हो जाएगी तो फिर हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होती है। किस तरह से आगे बढ़ोगे? मास्क पहने रखोगे ना? हाँ, मास्क पहन के, हाथ बार बार धो के और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी।